हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज असी गुआचिया मुंडा नावल का दूसरा पाठ पढ़ांगे। पहले पाठ दे विच असीं पढ़िया कि किस तरह घोगा जो है उसका की रूटीन है। तो सवेरे स्कूल जाता है तो वापस जो घर आता है तो बस्ता सुट के वो रोटी पानी खा के या तो सो जाता है या फिर टीवी देखता है। तो उस तो बाद वो फिर शामां नूं फिर मुंडिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ चला जाता है बाहर घूमण वास्ते। तो रात को हनेरे पे वापस आता है तो फिर आके टीवी वेखना शुरू कर देता है। तो इससे उसकी माँ जो है उसमें बहुत नाराज़ होती है तो कहती है कि तू कोई पढ़ाई भी कर लिया कर। तो घोगा अगों उसनों जवाब दिंदा है कि मैं किहड़ा पढ़दा नहीं हाँ, मैं भी पढ़दा हाँ। तो माँ कहती है कि जेकर तू पढ़दा सी तो फिर तू 6वीं जमात विचों फेल क्यों हो गया। तो अपने फेल होने का की कारण दसदा है कि भी मैं तो पीर बाबे दे मत्था नहीं टेकिया सी, इस करके मैं फेल हो गया। तो फिर माँ अगों समझाती है कि पीर बाब जो हैं गुरु पीर भी तां ही सहाय हुंदे हैं जेकर बंदा अपनी मेहनत खुद करता है, अपनी सहायता खुद करता है, नहीं तो जो है गुरु पीर भी सहाय नहीं होंगे। तो इस तरह जो घोगा फिर सौ जाता है ਤਾਂ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਪਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਦਰ ਪਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਜ ਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਜੜਿਆ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜਿਆ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੰਦਰ ਪੈਨ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚੰਦਰ ਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੈਨ ਚੰਦਰ ਪੈਨ ਜੋ ਹੈ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਗਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਗਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਪਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਪਏ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ ਸੀ, ਅਲਾਰਮ ਕਲੌਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਘੋਗੇ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਘੋਗਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਵੇਰ ਸਭਾ ਮਤਲਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਤਾਰਾਂ ਮੀਨਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਘੋਗਾ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ। ਇੰਜ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਗੋਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਘੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਕਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗੋਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਝੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਘੋਗਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਝਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸੀ,
ठीक है। तो साइंस वाला जो अध्यापक से, विज्ञान मतलब साइंस वाला जो अध्यापक से, नाल दी नाल जिस तरह ही असैंबली खत्म हुई, सारे बच्चे अपने अपने कमरिਆਂ ਵਿੱਚ आ गए तो नाल दी नाल अध्यापक भी कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया। कहता विज्ञान अध्यापक हवा के दबाव बारे समझाउण लग पे, मतलब एयर प्रैशर, हवा का दबाव मतलब एयर प्रैशर, हवा के दबाव बारे समझाउण लग पे। तो मुंडे समझ भी रहे सन तो बोर्ड तो देख के लिख भी रहे सन। देखो हुण क्लास शुरू हो गई है तो अध्यापक पढ़ा रहा है तो बच्चों का जो काम है कि बच्चे सुनते भी हैं तो बोर्ड तो वेख के लिखते भी हैं। ठीक है। तो घोगा कुछ भी नहीं कर रहा सी, ना वो पढ़ रहा सी, ना वो सुन रहा सी, ना वो लिख रहा सी, कुछ भी नहीं कर रहा सी। सामने रखी कापी उत्ते वो इंज हत्थ चला रहा सी जिवें बहुत कुछ लिख रहा होवे। विज्ञान अध्यापक डैस्कां दे कोल जा के देखण लग पे कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। घोगे कोल आके उन्हें देखा कि उहदी कापी साफ सी। उन्होंने पूछा तू क्यों नहीं लिखदा? सर पैन नहीं चलदा, घोगे ने बहाना कढ़िया। तो पेंसिल नाल लिख लै। सर पेंसिल है नहीं, लैके क्यों नहीं आया? सर गवाच गई, नवी मिली नहीं, दुकान बंद सी। घोगे ने फटाफट बहाने कढ़ ले। जिस तरह अक्सर ही तुसीं लोग भी क्लासां दे विच बहाने कई बारी बनाउने हो। कुछ बच्चे ने पूछे होंदे भी तू काम नहीं किया जी, मेरे को कापी नहीं सी, या मेरी कापी कोई लै गया सी, ये है वो है, 36 तरह के बहाने। उस तरह के बहाने जो है घोगा बना रहा है। हुण देखो पैन है नहीं उहदे कोल, पैन नहीं, जो कहना पेंसिल ना ले रहा जी, पेंसिल भी है नहीं। पेंसिल क्यों नहीं हैगी? पेंसिल दी मैनू मिली नहीं क्योंकि दुकान बंद सी। ठीक है। घोगे ने कई सारे बहाने कढ़ ले। अध्यापक ने घोगे का कंन खिंचदे कहा जे पढ़न की नीयत होवे ना तो किसी कोलों पैन मंगिया भी जा सकता है, सर कोई दिंदा ही नहीं। घोगे ने अपना दोष दूजियां दे उत्ते मढ़ दिता ते कंन छुड़ाउण की कोशिश की। ਇਹਦਾ मतलब है तू दूजियां नाल बना के नहीं रखदा। अध्यापक ने ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ होर मरोड़ा दिता। घोगे ने उई उई करन तो इलावा कोई जवाब नहीं दिता। अध्यापक ने इकबाल तो वाधू पैन लै दिता। घोगा लिखण की कोशिश करन लगा पर उन्होंने अध्यापक की कोई भी गल समझ नहीं आ रही सी क्योंकि उन्हें पाठ वाल शुरू तो ध्यान नहीं सी दिता। हुण देखो उन्हें शुरू तो पता ही नहीं, जो क्लास के विच अध्यापक पढ़ा की रहा है तो फिर उसनों की पता चलना सी। इस करके हुण उन्होंने कुछ समझ नहीं सी आ रही कि वह कापी ते की लिखे। हुण पहला पीरियड हो गया विज्ञान का, साइंस का। हुण नैक्सट पीरियड शुरू होंदा है विज्ञान तो अगला पीरियड कला का सी। कला मतलब ड्राइंग का। इस पीरियड विच घोगे ने भज्जण बारे नहीं सोचिया। मतलब पहले पीरियड विच सारा ध्यान उहदा ये सी कि किसी ना किसी तरीके वो क्लास विचों भज जाए, स्कूल दे विचों भज जाए। इस करके उसका मन जो है पढ़ाई विच नहीं लग रहा सी। तो हुण जो सैकेंड पीरियड है विज्ञान का, ये उसका मनपसंद पीरियड है। इस करके उस पीरियड विच उसने भज्जण बारे नहीं सोचा। कला उसका मनपसंद विशा सी। वो बड़े सोहने चित्र बना लैंदा सी। कला अध्यापक घोगे की प्रशंसा करते सन। इस पीरियड विच घोगा मन लगा के काम करता रहा। उन्हें चित्र आदि बनाउण विच होरनां मुंडिਆਂ की मदद भी की। पर जदों पीरियड मुक्कण वाला होया तो उन्होंने अचवी जी लग गई। अचवी मतलब कि उसके मन में हुण ये हो गया कि हुण ये पीरियड खत्म होने वाला है तो किस तरह हुण अगले पीरियड तो बचिया जाए, किस तरह स्कूलों भज्जिया जाए। अचवी जी लग गई। अगला पीरियड गणित का सी। गणित का मतलब मैथ्स का, हिसाब का जो है पीरियड सी मैथ्स का अगला। तो हुण पहला साइंस का सी, दूसरा उहदा विज्ञान कला का, तो तीसरा मैथ्स का पीरियड। जमात विचों खिसकण लई उसने सोचा कला अध्यापक तो पानी की छुट्टी मंग लवे, पर काम विच अजिहा रुझिया कि छुट्टी मंगण का मौका ही नहीं मिलिया। घंटी वज गई तो तीजा पीरियड शुरू हो गया। हुण तीसरा पीरियड जी मैथ्स का शुरू हो गया। तो गणित अध्यापक जो है वो कहने सवाल समझा रहा सी पर घोगा ऊँघ रहा सी मतलब सौ रहा सी। अध्यापक ने ब्लैकबोर्ड वालों हट के जमात वाल देखा। एक मुंडा बोल पिया, सर घोगा सौ रहा है जी। जिस तरह सारे बच्चे करते अक्सर ही कि जे कोई शरारत कर रहा हो या कोई सौ रहा हो तो दूजे जाने उसकी शिकायत लगा देंगे हैं। इस तरह कहता घोगे की शिकायत लगाती भी घोगा सौ रहा है। अध्यापक ने घोगे वाल देखा तो मुंडे घुसर मुसर करन लग पे।
ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਘੋਗੇ ਦੇ ਕੂਣੀ ਮਾਰੀ। ਘੋਗੇ ਦੇ ਕੂਣੀ ਮਾਰੀ। ਘੋਗੇ ने तरबक के अखां खोलियां। तरबक के मतलब कि एकदम। तरबक के अखां खोलियां। सारी जमात हस पई। घोगा शर्मिंदा हो गया। अध्यापक ने उन्होंने खड़े होने लई कहा ते पुछया, की गल है, राती सुत्ता नहीं सी? घोगे ने नीवी पा ली ते डैस्क ते नीवी पा ली ते हाँ ते परले डैस्क ते गुरी बोल पिया, सर ये रात टीवी दे। अध्यापक ने उन्होंने पूछा भी तू सौ क्यों रहा है हुण, रात की तू सुता नहीं? तो अगों आंसर दिंदा है, आंसर कोई ना दिंदा ते चुप करके परले डैस्क कोल खड़ा हो जाता है। तो गुरी उदों उत्तर दिंदा है कि सारा रात टीवी देखता रहिंदा है। तैनूं किवें पता, तू नाल सी? अध्यापक ने गुरी नूं सवाल किया। इन्हें आप दस्सिया सी जी। क्यों बई, ठीक है गल? अध्यापक ने घोगे नूं पुछया। घोगा नीवी पाई खड़ा रहा। अध्यापक ने उन्होंने होर जलील करना ठीक ना समझिया ते घोगे नूं बिठा के उन्होंने सारी जमात नूं कहा, देखो बेटा, मैं तुहानूं खेडण जां दिल परचावा करन तो नहीं रोकदा। तुसीं खेडो, टीवी देखो, अखबार रसाले पढ़ो, पर सारा समा इसे पासे ही ना लगे रहो, पढ़ाई वाल भी पूरा ध्यान दो। फिर अध्यापक ने घोगे नूं समझाया, अच्छा हुण ना सोई, आपां कुछ सवाल कढ लईए। घोगे ने सिर हिला के हामी भरी तो सचेत होकर बह गया। मतलब कि हुण उन्हें कहा कि ठीक है, मतलब उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिता तो बड़ा एक्टिव होकर बह गया जमात में। पर गणित में उसकी रुचि नहीं सी, इंटरस्ट नहीं सी। वो फिर ऊँगन लग पिया। बाकी बच्चे समझ रहे सन तो लिख रहे सन, ऊँग रहे घोगे वाल हुण किसी का ध्यान नहीं सी। पीरियड खत्म होने की घंटी वजी। घोगे दी अखां भड़क देने खुल गईयां। जो बैल वजी तो घोगा जो सुता पिया सी, एकदम उसदी अखां खुल गईयां, उसनूं जाग आ गई। अध्यापक जी चले गए तो घोगे ने गुरी दे गल नूं जा हथ पाया। मतलब कि गुरी दे नाल जाके लड़ना शुरू कर दिता घोगे ने। तू दस, तू क्यों दस्या बई मैं रात टीवी देखदा रहा? तो अगों गुरी कहंदा, मैं कोई झूठ तो नहीं बोलिया, तू दस्या सी तां ही मैं दस्या। गुरी ने भी घोगे नूं कमीज के कॉलर तो फड़ लिया। भी दोनों देखो एक दूजे के गलों फड़ के बह गए, दोनों जाने लड़ना शुरू हो गए। घोगे ने गुरी नूं धक्का दे के डैस्क उत्ते सुट लिया। घोगे ने गुरी नूं धक्का दे के डैस्क उत्ते सुट लिया तो गुरी ने भी उन्होंने गलमे तो खिंच के अपने नाल ही डेग लिया। दोवें गुत्थम गुत्था होए फर्श उत्ते डिगे पे सन ते सारी जमात तमाशा देख रही सी। गोपी गुरी नूं हल्लाशेरी दे रहा सी, मार इनू, मार इनू। मतलब कि गोपी ते गुरी दोनों दोस्त सन ते इस करके वो जिहड़ा उहदा दोस्त सी गोपी, वो गुरी नूं कह रहा सी कि इसनूं होर मार। सुरजीत कह रहा सी, ओए ना लड़ो, ओए हट जाओ, हट जाओ, सर जी आउंदे आ। कई मुंडे हो कर रहे सन ते ये रौला दूर तक सुनाई दे रहा सी। जिस तरह कि अक्सर ही क्लासां दे विच हुंदा है, सारे नूं अपने याद आ रहा होने सीन कि क्लासां दे विच की कुछ हुंदा है कि एक बच्चा लड़दे हन, दो जने लड़दे हन ते बाकी सारे शोर करदे हन। ते इसे तरह ही घोगे हुणां नाल हो रहा सी। घोगा ते गुरी जो हन आपस विच लड़ रहे सन और बाकी सारे शोर मचा रहे सन। समाजिक ज्ञान मतलब SST, हुण SST का जो पीरियड है वो आना सी। समाजिक ज्ञान वाले अध्यापक जी छेती नाल जमात विच पुज गए। सारे मुंडे भज के अपनी सीटां उत्ते बैठ गए। गुरी ते घोगा भी एक दूजे के गलमे छड्ड के खड़े हो गए। गलमे मतलब गल। गुरी की कमीज़ का कालर पाट गया तो घोगे के दंदां विचों लहू वग रहा सी। अध्यापक जी ने पुछ-गिछ की। घोगे ने शिकायत की कि गुरी उन्होंने घोगा मोगा कह के चिड़ाउंदा सी ते गुरी ने उही गल दसी जिहड़ी होई सी। मतलब घोगा जो है अपनी गल तो मुकर गया और उन्हें बदल गया कि किहड़ी गल तो लड़ाई हो रही सी, पर जो गुरी सी उन्हें सच्ची गल दस दी। दूजे मुंडिया ने भी सही गल दसी।
ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੈਸਕ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਘੋਗਾ ਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਲੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੇ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੌਰੀ, ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। SST ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ SST ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋਗਾ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਘੋਗਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਇਹ 4 ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਏ। 4 ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘੋਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਘੋਗਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਡ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।